Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharathi Mode English School. So today I'm going to teach you History 9 chapter, that is the Maratha War of Independence. Okay. So in this chapter we are going to learn Maratha War of Independence. After the death of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Marathas fought with great valor with the Mughals under the leadership of Chhatrapati Shambhaji Maharaj. Yes, so after the death of Shivaji Maharaj, what will happen? The Maratha fought with great valor. Obviously, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ मुगल्स के साथ फाइट किया था. At under the leadership of Chhatrapati Shambhaji Maharaj. Okay, and who was Shambhaji? His son, Shivaji Maharaj's son. Okay, so Chhatrapati Rajaram Maharaj and Maharani Tarabai to protect the Swaraj. Yes, so when Chhatrapati Shambhaji Maharaj had fought against Mughal, so at that time Chhatrapati Rajaram Maharaj and Maharani Tarabai, these two person were protect their स्वराज. ये दोनों क्या कर रहे थे? अपने स्वराज को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे. और जो संभाजी महाराज थे वो क्या कर रहे थे? उनके जो वॉरियर्स थे उनको लेकर मुगल्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे. ओके okay? This long war that lasted for 27 years, it called the Maratha War of Independence. Yes, अब ये जो वॉर चल रही थी, राइट, मराठास की और मुगल की, राइट, तो ये जो वॉर थी इसने कितने ड्यूरेशन, कितने टाइम तक ये वॉर चल रही थी? 27 ईयर्स तक. ओके, दिस लॉन्ग वॉर दैट लास्टेड फॉर 27 ईयर्स, मतलब 27 ईयर्स तक ये चल रही थी. एंड दिस वॉर इज नोन एज मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑब्वियसली ये जो वॉर थी मराठास की थी, और मराठा किसके साथ ये वॉर फाइट कर रहे थे? विथ मुगल्स, है ना. व्हाई दे आर फाइटिंग विथ मुगल्स? टू टू प्रोटेक्ट देयर नेशन और टू प्रोटेक्ट देयर स्वराज. ओके, in 1682 CE, Emperor Aurangzeb himself led the invasion of South. Yes, so what will happen in 1962? Emperor औरंगजेब जो थे emperor थे, तो उन्होंने क्या किया था? He led the invention of South. South का जो पार्ट था हमारी कंट्री का, तो उन्होंने वहाँ पर मतलब इन्वेंशन कर लिया था, मतलब वो एरिया को अपने अंदर कैप्चर कर लिया था. Even then, despite enormous difficulties, the Marathas emerged victorious in this struggle. लेकिन देखो बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद, बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद द मराठास इमर्ज विक्टोरियस. उन लोगों को क्या मिली? विक्ट्री मिली, जीत मिली. ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ को, हम लोगों को अगर कोई चीज़ लेनी है, तो इफ़ वी आर डूइंग हार्ड वर्क, इफ़ यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, और आप लोग ने फुली डिसाइड कर लो कि दैट कि आपको वो चीज़ चाहिए, यू वांट दैट थिंग, तो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट थिंग, है ना. तो वैसे ही बहुत सारे स्ट्रगल के साथ, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद मराठा ने वो वॉर जीत गए थे, विक्ट्री हासिल किए थे उन्होंने. This war is an exciting and glorious period in the history of India. And yes, that period was very exciting and glorious period. मतलब वो जो period था, obviously that was very important period in Maratha history. So in this chapter, we shall learn about this war of independence. Yes, so in this chapter, we are going to learn about this war, means about the Maratha war of independence. Okay. The word Maratha used here means the people who speak Marathi or Maharashtrian people. Yes. So what's the meaning of Maratha? All we know. Maratha means the person who is speaking Marathi language, who is using Marathi language, or that person who is speaking Marathi language, that person is also known as Maharashtrian people, है ना. तो मराठा ये जो वर्ड है वो कैसे बना है? ऑब्वियसली जो लोग मराठी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उससे क्या बना है? मराठा वर्ड बना है, राइट. और सेकंड उसका मीनिंग क्या है? महाराष्ट्रियन पीपल. Yes. So this is a picture of Chhatrapati Shambhaji Maharaj. Okay. Now let's see Chhatrapati Shambhaji Maharaj. Shambhaji Maharaj was the eldest son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes. अब देखो जो Shambhaji Maharaj है, so he was the eldest son. मतलब ये शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे. And he was born on 14 May 1657 on the Purandar Fort. Yes, so when he was born on 14th May 1657 on the Purandar Fort. Okay, Purandar Fort पे born हुए थे. And after Shivaji Maharaj, he became the Chhatrapati. Yes, obviously after the death of Shivaji Maharaj, his elder son became the Chhatrapati of their Swaraj. है ना, उनके स्वराज के छत्रपति हेड कौन बने थे?
शिवाजी महाराज के जो एल्डर सन थे, एंड हु वाज द एल्डर सन ऑफ शिवाजी महाराज? छत्रपति संभाजी महाराज. So he became the Chhatrapati of Swaraj. At this time, the Marathas were battling against the Mughals. Yes, during the same period, Emperor Aurangzeb's son Shahzada Akbar rebelled against his father. Yes, so देखो अब ये जब after Shivaji Maharaj died, when his son, his elder son, who became the Chhatrapati of Swaraj, at that time the Marathas battled with मुगल. मराठा की वॉर बैटल किससे हो रही थी, किससे फाइट हो रही थी? मुगल से हो रही थी. और एट दैट टाइम, वही टाइम पर क्या हो रहा था, जो एम्पेयर औरंगजेब है, उनके जो सन थे शहजादा अकबर, वो रिबल कर रहे थे, उनके जो डैडी थे उनसे रिबेल कर रहे थे. ओके. The emperor crushed The emperor crushed his rebellion. Then Akbar came to the Deccan to take shelter with Shambhaji Maharaj. Yes, obviously अब देखो ये जो एम्पेयर थे, एम्पेयर औरंगजेब, राइट? तो वो क्या हो गए थे, मतलब ये रेबेलियन में पूरी तरह से क्रस्ट हो गए थे, मतलब ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो गए थे. तो उन्होंने क्या किया, अकबर केम टू द डेक्कन. वो कहाँ पर है? डेक्कन साइड है. और उन्होंने कहाँ पे शेल्टर ली? संभाजी महाराज के अंडर में शेल्टर ली. संभाजी महाराज मीन्स शिवाजी महाराज के एल्डर सन, मतलब वो उनके अंडर में आ गए थे शेल्टर लेने के लिए, अपने सन से बचने के लिए. Then the emperor himself descended on the south in 1682 CE, vanquish Akbar. Yes, so अब देखो क्या हुआ था. Then emperor himself, अब emperor ने खुद से क्या किया था? He descended on the south. उन्होंने क्या किया था? He descended साउथ का जो पोर्शन था वो साइड किया था 1682 में, to vanquish अकबर, अकबर को vanquish करने के लिए. He had with his he had with him a huge army and a powerful artillery. अब अकबर के साथ वो टाइम पे बहुत सारी क्या थी? आर्मी थी. ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी. एंड प्लस पावरफुल आर्टिलरी. आर्टिलरी मतलब जो इक्विपमेंट होते हैं, जो सामान होते हैं ना मिलिट्री के, सॉरी वॉर के टाइम में जो यूज़ करते हैं वेपन्स, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे उनके पास. He asked the Sindhi of Janjira to undertake an expedition against the Marathas. अब उन्होंने क्या बोला, क्या जो जंजीरा के जो सिद्धि पीपल्स हैं उनको क्या बोला? टू अंडरटेक द एक्सपीडिशन. उनको क्या बोला कि वो मतलब ये जो चल रहा है, जो भी चीज़ें सिचुएशन चल रही थी, तो टेक द एक्सपीडिशन अगेंस्ट द मराठा, मराठा के अगेंस्ट में जाने को उनको बोला गया था. ही ऑल्सो वॉन ओवर द पोर्टुगीज टू हिज साइड. एंड फॉर्चुनेटली वो किससे जीत गए थे? जो पोर्टुगीज थे, जो आए थे हमारी कंट्री में सबसे पहले, तो उनसे वो जीत गए थे. कॉन्सिक्वेंटली संभाजी महाराज हैड टू फेस many advisories at one and the same time. Yes, obviously वो टाइम पे देखो संभाजी महाराज को बहुत सारी एडवर्सरीज मिल रही थी, मतलब वही टाइम पर, क्योंकि उनको पता चल रहा था ना कि उनके किंगडम में कौन कौन रह रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही है. The reach of Shambhaji Maharaj marked the first chapter of the Maratha War of Independence. Yes, अब देखो जो रीजन था जो संभाजी महाराज का है ना, जो जब मतलब संभाजी महाराज ने स्टार्ट किया था रूल करना स्वराज के ऊपर, तो वो जो रीजन था वो क्या मतलब किस तरीके से मार्क किया गया था? इट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मराठा वॉर. मतलब मराठा वॉर का ये क्या था? फर्स्ट चैप्टर था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था ये मराठा वॉर का आफ्टर शिवाजी महाराज. ओके. So Shivaji Maharaj had given him excellent education in civil administration and military campaigns. Yes, obviously Shivaji Maharaj जब लाइव थे तो उन्होंने at that time he get excellent education to his child, right? उन्होंने उनके बच्चे को शिवाजी महाराज को बहुत अच्छा एजुकेशन दिया था. कहाँ पर? इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री कैंपेन्स में. Shivaji Maharaj had begun to take interest in the administration of the state and command of the army from the age of 14 years. Yes, so when Shivaji Maharaj was 14 at that time, Shivaji Maharaj were very had put their interest in administration. मतलब वो जो 14 years के थे जब भी से उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में बढ़ गया था? एडमिनिस्ट्रेशन में. मतलब उनके स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो कमांड था आर्मी का, उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था. So while he was still a prince, he had led attack on many territories of the Mughal. Yes, so जब वो छत्रपति नहीं बने थे, मतलब जब वो यंग थे, प्रिंस थे, है ना, तो वो टाइम पर ही उन्होंने मुगल के अगेंस्ट में बहुत सारे अटैक किए थे. मतलब मुगल की बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जिसके ऊपर संभाजी महाराज ने अटैक किए थे, मुगल्स की भी और आदिल शाह की भी. ओके. Then French traveler Abbe Carey says about his battle skill, even though the prince is young, he is
courageous and brave like his father was famous for. Yes, अब एक फ्रेंच ट्रैवलर थे वो टाइम पर, तो उन्होंने क्या बोला था, द नेम ऑफ द ट्रैवलर इज एबे कैरी। तो उन्होंने क्या बोला था, मतलब उनकी बैटल स्किल में बताया था उन्होंने कि जैसे ही अब देखो जो संभाजी महाराज थे वो प्रिंस थे, है ना, यंग थे, लेकिन वो कितने कितने ज़्यादा मतलब क्वालिटी थी उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्यूरेजियस थे, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, एक्सीलेंट थे, हर एक फील्ड में वो एक्सीलेंट थे। तो जिस जैसे ही मतलब उनके डैडी की जो जो क्वालिटी थी वही क्वालिटी किसके अंदर आ गई थी, उनके सन के अंदर आ गई थी, संभाजी महाराज के अंदर आ गई थी। ये किसने बोला था, जो ट्रैवलर थे, फ्रेंच ट्रैवलर, उन्होंने बोला था ये। When Sambhaji Maharaj became Chhatrapati, the war with the Mughals became fiercer. Yes, अब देखो जब संभाजी महाराज क्या बन गए, छत्रपति बन गए, है ना, तो जो वॉर थी मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो ज़्यादा ही मतलब उसमें बढ़ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर वे में बढ़ गई थी। Aurangzeb wanted to occupy a region from Kabul and Kanyakumari and create a great unified Mughal empire. Yes, so देखो वो टाइम पे क्या हुआ था, जो औरंगजेब थे, तो what he wanted to do, he wanted to occupy the region, उनको अपने अंडर में कैप्चर करना था, एनेक्स करना था रीजन। कहाँ का, काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक का जो रीजन था, जो स्टेट था, जो भी एरिया थी, तो वो सब किसको लेनी थी, औरंगजेब को अपने अंडर में लेनी थी। ओके, और उनको जो अपना मुगल जो उनका मुगल एम्पायर था उसको एक यूनिफाइड मतलब एक बड़ा बनाना था, क्रिएट करना, ग्रांड करना था। हिज ड्रीम वॉज टू डिस्ट्रॉय द मराठास स्टेट कम्प्लीटली। यस, और उनका ड्रीम क्या था, ही वांट टू डिस्ट्रॉय द मराठास किंगडम, उनको मराठा किंगडम को डिस्ट्रॉय करना था औरंगजेब को। ओके, his dream was to destroy the Maratha state completely using his military and financial prowess. Yes, obviously as compared to Marathas, औरंगजेब के पास वो जो भी वेपन्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे ना, तो इसकी वजह से वो क्या चाहता था औरंगजेब, क्या उसके ये मतलब जो उसके पास ये गुड चांसेस है, मतलब जो इसके पास चीज़ें अवेलेबल है, इक्विपमेंट और जो भी चीज़ें इनको लग रही, वेपन्स जो है उसके पास, तो उसका यूज़ कर कर और उसके जो फाइनेंशियल प्रोविंसेस है उसका यूज़ कर कर वो मराठास को डिफीट करना चाहता था औरंगजेब। बट संभाजी महाराज बट संभाजी महाराज शैटर्ड हिज ड्रीम्स विथ हिज ब्रेवरी एंड मिलिट्री स्किल। लेकिन देखो संभाजी महाराज ने क्या किया, उन्होंने उनका जो ड्रीम था औरंगजेब का उसको शैटर कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका ड्रीम था कि महाराष्ट्र मतलब जो मराठास है उनको डिस्ट्रॉय करने का ड्रीम था औरंगजेब का, लेकिन और किस वजह से, मिलिट्री और फाइनेंशियल प्रोविस की वजह से, है ना। लेकिन जो संभाजी महाराज थे उन्होंने क्या किया, इनका जो ड्रीम था वो शैटर्ड कर दिया था। किस किस क्वालिटी के हिसाब से, उनकी जो क्वालिटी थी ब्रेवरी की और उनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी, ये दो पॉइंट के हिसाब से उन्होंने, ये दो पॉइंट की वजह से उन्होंने औरंगजेब का जो ड्रीम था उसको शैटर कर दिया था। ट्रूप्स ऑफ द मराठा आर्मी अटैक मेनी ऑफ द मुगल टेरिटरीज। अब जो ट्रूप्स होते थे, राइट, है ना, तो वो जो ट्रूप्स होते थे तो उन्होंने क्या किया था, जो मराठा आर्मी के जो ट्रूप्स है, तो उन लोगों ने मुगल टेरिटरीज के ऊपर अटैक किया था। ओके, मतलब बहुत सारी थी मुगल टेरिटरीज से, मुगल के एरिया से, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, किसने, मराठा आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उन लोगों ने। तो द एम्परर्स जनरल ट्राइड वेरी हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, अब इससे क्या हो गया, जब ये अटैक करे जा रहे थे मराठास, है ना, संभाजी महाराज, तो इसकी वजह से जो औरंगजेब थे, जो एम्परर औरंगजेब थे, तो उन वो भी थोड़े स्ट्रांग हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करने लग गए थे, क्योंकि उनको किसी इन एनी हाउ कंडीशन उनको मराठा को क्या करना था, डिस्ट्रॉय करना था। So here through the emperor generals tried very hard for a long time. They could not win the Maratha fort of रामसेज नियर नासिक, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम ट्राई करने के बाद भी ही हैड नॉट वॉन मराठा फोर्ट। उन्होंने अभी भी मतलब जो मराठा फोर्ट जो कैप्चर करना चाहते थे उन्होंने अभी भी वॉन नहीं किया था, जो कहाँ पर था, रमसेज नियर नासिक, मतलब यहाँ पर एक फोर्ट है जिसको वो कैप्चर करना चाहते थे, कौन, एम्परर औरंगजेब, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी वो उसको कैप्चर नहीं कर पाए थे। ओके, द संभाजी महाराज वैल्यू और ब्रॉट औरंगजेब टू हिज नीज। ऑब्वियसली अब ये सारी चीज़ों की वजह से औरंगजेब के आ गए अपनी नीज के ऊपर आ गए, उन्होंने घुटने टेक दिए थे, ऑब्वियसली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। और जो महाराज थे, संभाजी महाराज थे, वो ज़्यादा मतलब बैटल जीतते जा रहे थे। So once he removed his turban in frustration and threw it on the floor, he made a vow that until he had vanquished Sambhaji,
He would not wear his turban. संभाजी महाराज had rendered औरंगजेब helpless in this extent. देखो क्या हुआ था, मतलब ऑब्वियसली बार बार डिफीट होने के बाद मराठा से और संभाजी महाराज से फ्लस्ट्रेट में आकर औरंगजेब ने क्या कहता है, उनकी जो तुरबन होती है जो हम लोग हेड के ऊपर बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो तुरबन होती है जो हेड के ऊपर टाई करते हैं, देखो किंग्स, और जैसे भी आप लोग नमाज के लिए जाते हो तो आप लोग टाई करते हो ना, तो वैसी ही तुरबन होती है। तो उन्होंने फ्लस्ट्रेट होकर उसे निकाल कर क्या कर दिया था, फ्लोर के ऊपर फेंक दिया था। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जैसे शपथ ली थी और बोला था कि जब तक कि मैं संभाजी को नहीं डिस्ट्रॉय करूँगा तो जब तक मैं इसको वेयर नहीं करूँगा। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें देखने के बाद औरंगजेब कैसे, संभाजी महाराज को क्या लग रहा था कि औरंगजेब अब क्या हो गए, पूरे हेल्पलेस हो गए। ऑब्वियसली वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे बार बार डिफीट होने के बाद एक ही पर्सन से, संभाजी महाराज से। तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाली, अपने तुरबन को फ्लोर के ऊपर फेंक दिया, थ्रो कर दिया। और क्या वॉव लिया, क्या प्रॉमिस किया खुद से, क्या वो उसको वेयर नहीं करेंगे जब तक कि वो डिफीट नहीं कर देते संभाजी महाराज को। Now do you know? Aurangzeb thought that once the Maratha fort were captured, their rule too would came to an end. Obviously औरंगजेब की भी देखो जो प्लानिंग थी वो कंटिन्यू चली रही थी। औरंगजेब को क्या लगा था कि यार वो मराठा फोर्ट को कैप्चर कर लेगा तो ऑब्वियसली वहाँ का जो रूल है वो भी उसके अंडर में आ जाएगा, है ना। मतलब वहाँ का जो रूल है, मतलब जैसे वहाँ पे अभी मराठा लोग अगर रूल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि उसको कौन कैप्चर कर ले रहा है, औरंगजेब उसको कैप्चर कर रहा है। तो So he put a siege around the Ramses फोर्ट नियर नासिक। इसीलिए वजह से औरंगजेब ने क्या किया, अपनी सेज बनाई। कहाँ पर, रामसेज फोर्ट पर जो नियर नासिक है। औरंगजेब आर्मी वॉज ह्यूज, द मराठा आर्मी वॉज स्मॉल, बट दे फॉट विथ perseverance. The siege continued for the next 5 years. Yes, अब देखो ऑब्वियसली जो औरंगजेब की आर्मी थी, मैंने आपको पहले बताया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा नंबर्स के सोल्जर्स थे। तो जो औरंगजेब की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूज थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू मराठा। मराठा की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी। बट जो मराठा के जो वॉरियर्स थे, जो पीपल्स थे आर्मी में, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी एक्सीलेंट, है ना, वेरी ब्रेव। सो उन्होंने ऑब्वियसली उनकी या क्वालिटी की वजह से वो मतलब औरंगजेब को बार बार डिफीट कर पा रहे थे। सो बट दे फॉट विथ प्रेफरेंसेस, द सेज कंटिन्यू। ऑब्वियसली जो सेज रखा था वहाँ पर औरंगजेब ने, तो वो कितने ईयर्स तक थी, इट वॉज कंटिन्यू टिल 5 years। 5 year तक वो वहीं पर थी सेज। This bravery of a handful Maratha soldier was unparalleled. This resistance offered by the Marathas made Aurangzeb realize the difficulty of fighting with them. Yes, so यस, सो ऑब्वियसली ये जो ब्रेवरी थी किसकी, मराठास की, तो ये ब्रेवरी की वजह से क्या लगा, देखो दिस ब्रेवरी ऑफ अ हैंडफुल मराठा सोल्जर वाज अनपैरेलल। ऑब्वियसली देखो जो मराठास के जो सोल्जर्स थे वो औरंगजेब की नज़र में कितने थे, हैंडफुल, मतलब बहुत कम थे, लेकिन उनकी ब्रेवरी क्या थी, ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू औरंगजेब आर्मी। सो दिस रेसिस्टेंट ऑफर बाय द मराठास, अब ये ऑफर किससे मिला, उनको मराठा से मिला है। तो ऑब्वियसली जो औरंगजेब उसको क्या रियलाइज हुआ ये सारी चीज़ें देखने के बाद, क्या वो बहुत ज़्यादा क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है किससे फाइट करने में, मतलब मराठा के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। नाउ कैंपेज अगेंस्ट द सिद्धि। अब जो सिद्धि है ये भी किसके अंडर में है, मराठास के अंडर में है। तो अब देखो यहाँ पे कैंपेज है। द सिद्धि ऑफ जंजीरा, द सिद्धि ऑफ जंजीरा यूज टू harass the people in the Maratha territory. यस, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो सिद्धि थे कहाँ पर, जंजीरा में, तो वो क्या कर रहे थे, दे वर हैरेस द पीपल। जो मराठा टेरिटरी में जो पीपल रहते थे, जो पर्सन रहते थे, उनको क्या करते थे, हैरेस करते थे, परेशान करते थे। He used to raid, burn, and loot the Marathas' territory and commit atrocities. Yes, तो वो क्या करते थे, देखो वहाँ पे रेड डालते थे सिद्धि लोग, है ना, वहाँ पे रेड डालते थे और फिर वहाँ वो एरिया को बर्न कर देते, मतलब जो मराठा टेरिटरी थी उसको बर्न कर देते, वो एरिया में रेड डालते थे, या फिर जो मराठास थे उनको लूट लेते थे। दे लूटेड द पीपल हु आर लिविंग इन द मराठा टेरिटरी एंड दे कमिट atrocities. So Sabhasada has described him as a rat in the house. ये सो यहाँ पे देखो जो है सबासना, है ना, तो उन्होंने खुद को क्या बताया है, हैज डिस्क्राइब हिम एज अ रैट इन द हाउस। उन्होंने अपने आप को क्या डिस्क्राइब किया है, रैट इन अ हाउस। अब क्यों, देखो संभाजी महाराज स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट हिम इन 1682। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उनके टेरिटरी में,
शिवा संभाजी महाराज के। तो उन्होंने क्या किया, कैंपेन लगाई कब 1682 में। एंड हीज आर्मी लेड अ सिege ऑफ सिंधी दंदा राजपुरी फोर्ट। अब उनकी जो आर्मी थी उन्होंने कहाँ पे सेज लगाई थी, जो सिद्धि का जो फोर्ट है दंदा राजपुरी फोर्ट, तो वहां पे लगाई थी। एंड बैटर द फोर्ट ऑफ जजीरा विद द आर्टिलरी। यस, ऑफ क्या क्या उससे बैटर किया कहाँ पर, मतलब जजीरा में, और आर्टिलरी मतलब बहुत सारे अलग अलग जो वेपन्स होते उसके साथ। बट एट द सेम टाइम द मुगल आर्मी इन्वेडेड स्वराज। लेकिन देखो, जब यहाँ पे शिवा संभाजी महाराज बिजी हुए तो वही टाइम पे क्या हुआ, जो मुगल आर्मी है वो उसने किसके ऊपर इन्वेडेड किया, स्वराज के ऊपर। संभाजी महाराज हैड टू अबेंडन द जंजीरा कैंपेज एंड टर्न बैक। ऑब्वियसली जब शिवाजी महाराज को पता चला, संभाजी महाराज को जब पता चला कि स्वराज के ऊपर अटैक किया किसने, मुगल ने, तो उन्होंने ये वाली कैंपेज छोड़कर वो कहाँ पे चले गए, स्वराज में चले गए थे वापस। ओके, मतलब उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, जंजीरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका स्टेट था, राइट। तो ये एक पोर्शन है और वो मेन था। तो अगर वो मेन के ऊपर अपना अटैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा स्वराज के ऊपर, है ना। तो इसकी वजह से ये कैंपेज को लेफ्ट करके वो कहाँ पे चले जाते, दे बैक टू देयर स्वराज। नाउ नेक्स्ट, कैंपेज अगेंस्ट द पोर्टुगीज। ओके, द पोर्टुगीज ऑफ गोवा ज्वाइंड हैंड्स विद द एम्परर अगेंस्ट संभाजी महाराज। ये सब देखो, जो पोर्टुगीज थे उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के साथ शेक हैंड कर लिया, मतलब औरंगजेब के साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन फॉर्म कर लिया। और किसके अगेंस्ट में हो गए, दोनों भी संभाजी महाराज के अगेंस्ट में हो गए। सो संभाजी महाराज डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द पोर्टुगीज। सो यस, संभाजी महाराज ने क्या डिसाइड किया कि वो एक लेसन टीच करेंगे, किसको, पोर्टुगीज को। ही अटैक द रियोडंडा फोर्ट ऑफ द पोर्टुगीज इन 1684। यस, अब उनको एक लेसन सिखाने के लिए, मतलब उनको कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे संभाजी महाराज ने जो पोर्टुगीज का फोर्ट था, रियोडंडा फोर्ट, ओके, तो उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था 1683 में। He countered this. The Portuguese laid a siege to the Fonda fort of the Marathas on the Goa border. Yes, अब देखो, इन लोग ने जब पोर्टुगीज की जो एरिया में घुसकर मराठास ने उनके फोर्ट के ऊपर अटैक किया, तो वही टाइम पे जो पोर्टुगीज थे तो उन्होंने उनकी सेज कहाँ पे लगाई, फोंडा फोर्ट में, जो कौन से किंगडम में आता है, मराठास के किंगडम में आता है, लेकिन वो कौन सी बॉर्डर पर है, गोवा बॉर्डर पर है। The Marathas broke through the siege and attacked Goa. Yes, लेकिन मराठास ने क्या किया, दे ब्रॉक थ्रू द सेज, जो सेज लगाई गई थी पोर्टुगीज की, उन्होंने वो सेज को ब्रॉक कर दिया एंड दे वेर अटैक टू गोवा, उन्होंने गोवा के ऊपर अटैक कर दिया। इन दिस बैटल यसाजी कनक शो अ ग्रेट वॉरियर, द पोर्टुगीज गवर्नर गॉट वाउंडेड एंड रिट्रीटेड। संभाजी महाराज फॉलोड हिम। यस, अब ये जो बैटल हुई थी, तो ये बैटल में सबसे ज्यादा जो हार्ड वर्क किया था वो थे यशाजी कनक ने। उन्होंने अपना ग्रेट वैलियर दिखाया था ये वॉर में। एंड जो पोर्टुगीज गवर्नर थे तो गॉट वांटेड, मतलब वो जख्मी हो गए थे एंड रिट्रीटेड। ओके, एंड संभाजी महाराज फॉलो हिम। सो द पोर्टुगीज वेयर इन डीप ट्रबल। अब ये सारी प्रॉब्लम के बाद जो पोर्टुगीज थे वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गए थे, परेशान हो गए थे। एंड एट दिस टाइम संभाजी महाराज गॉट द न्यूज़ दैट द मुगल हैड अटैक साउथ कोंकण। अब यही टाइम पर जब संभाजी महाराज कहाँ पर बिजी है, गोवा में बिजी है, तो वो टाइम पर इनको क्या न्यूज़ मिली है कि जो मुगल्स हैं तो उन्होंने साउथ कोंकण का जो एरिया है तो उसके ऊपर अटैक करा है। Therefore, he had to abandon the winning campaign of Goa and return to fight with the Mughals. Yes, अब यहाँ पे वापस क्या हुआ, जब उनको पता चला, मतलब ऑब्वियसली ये जो बैटल चल रही थी, मतलब टोटली वो जीत गए थे ना, दे वॉन दैट दिस बैटल, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वर हैपन, they got the news that Mughals had attacked on the south Konkan part of their Swaraj. वो टाइम पर उनको क्या न्यूज़ मिली कि जो मुगल्स है उन्होंने उनके साउथ कोंकण पार्ट के ऊपर अटैक कर दिया। सो हियर संभाजी महाराज लेफ्ट द कैंपेज ऑफ गोवा एंड रिटर्न टू फाइट विथ मुगल्स। मतलब उन्होंने वापस से यहाँ पर भी अपनी कैंपेज, विनिंग कैंपेज, मतलब जीत रहे थे ना वो ये कैंपेज, तो ये विनिंग कैंपेज छोड़कर वो कहाँ पे रिटर्न हो गए, रिटर्न टू द मुगल्स, रिटर्न टू देयर स्वराज। ओके, now the end of Adil Shahi and Qutub Shahi. Now how the ruling power of Adil Shahi and Nizam Shahi were end. Aurangzeb did not succeed in his campaign against the Marathas. Therefore, he suspended the campaign. Then he turned towards the kingdom of Adil Shah and Qutub Shah and conquered them.
Yes, so what will happen here? औरंगजेब did not succeed in a campaign. Means औरंगजेब जहाँ जहाँ पर अपनी कैंपेन लगा रहा था, वहाँ वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिला था. That's why what he decided. Yes. Yes. So औरंगजेब did not succeed in his campaign. जब जहाँ जहाँ पर औरंगजेब अपनी कैंपेन लगा रहा था, there he had not got success from मराठास, है ना, मराठा से उनको सक्सेस नहीं मिला. So therefore he suspended the campaign. उन्होंने क्या किया, कैंपेन छोड़कर वो कहाँ पे चले गए? He turned toward the kingdom of आदिल शाह. वो कहाँ पर किसके किंगडम में चले गए? आदिल शाह और कुतुब शाह के किंगडम में चले गए. The wealth of army, the wealth and army of both the kingdom was now acquired by the Mughals, made and it made औरंगजेब even stronger. Yes, अब ये दोनों जो किंग्स थे, आदिल शाह और कुतुब शाह, ये दोनों की आर्मी किससे मिल गई है? औरंगजेब से मिल गई है. तब ये क्या बन गई है? और बड़ी आर्मी बन गई है. द वेल्थ एंड आर्मी ऑफ द बोथ किंगडम वाज नाउ एक्वायर्ड बाय द मुगल्स एंड इट मेड औरंगजेब इवन स्ट्रॉन्गर. अब ये दोनों मतलब ऑब्वियसली तीनों जन मिलकर अब क्या और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, मतलब औरंगजेब और ज्यादा स्ट्रांग हो गया. देन ही concentrated all his might on defeating the Marathas. अब वो वापिस से क्या सोच रहा था कि अब किसको डिफीट करना सोच रहा था? मराठा को कैसे डिफीट करना, यही बारे में सोच रहा था. He attacked their territories from all sides. The Maratha army generally Hambirrao Mohite got killed during an encounter with the Mughal army. Yes. तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर जितनी भी मराठा की टेरिटरीज थी, मराठास की जो टेरिटरी थी, तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर लिया था सारी साइड से, ऑल साइड, फ्रॉम ऑल साइड्स. एंड द मराठा आर्मी जनरल, जो मराठा आर्मी के जो जनरल थे, हम्बीराव मोहिते, तो ही वेर किल्ड बाय मुगल आर्मी. मगर जो एनकाउंटर हुआ था, तो एनकाउंटर में मुगल आर्मी के थ्रू जो एनकाउंटर हुआ था, तो एनकाउंटर में जो मराठा जनरल थे, मराठा आर्मी जनरल थे हम्बीराव मोहिते, वो किल्ड हो गए थे. ओके. सो ड्यू टू दिस ब्लो द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ संभाजी महाराज वाज वीकेंड. ऑब्वियसली इतना मतलब ग्रेट जो वॉरियर था, फाइटर था, है ना, तो उसको खोलने के बाद जो मराठास जो थे, तो दे वाज वीकेंड, वो क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे. और ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ थी, ये मतलब मराठ स्वराज में बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई थी. ऑब्वियसली अब इतना बड़ा मतलब और इतना इंपॉर्टेंट पर्सन अगर हम खो देंगे, लॉस्ट कर देंगे, तो वी वर टोटली इन शॉक. एंड जो मिलिट्री थी वो संभाजी महाराज की, वो भी क्या हो गई थी? वीक हो गई थी. इवन संभाजी महाराज भी क्या हो गए थे? बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ संभाजी महाराज. ओके. Even though Sambhaji Maharaj was busy fighting on various battlefronts, he did not ignore his administrative responsibility. Yes. So while Sambhaji Maharaj was busy uh, fighting with their enemies, they had not ignored their administrative responsibility. Obviously उनकी जो administrative responsibility थी, administrative जो responsibilities थी, उसको उन्होंने इग्नोर नहीं किया था. जब भी वो फाइट कर रहे थे उनके एनिमीज के साथ, वो टाइम पर उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको इग्नोर नहीं किया था. ही कंटिन्यू द प्रॉम्प्ट जस्टिस एंड रेवेन्यू सिस्टम विच वॉज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. यस, उन्होंने क्या किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जस्टिस और जो रेवेन्यू सिस्टम बनाया हुआ था, और दैट वे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, सो वही सब वो कंटिन्यू कर रहे थे. एंड ही सेवरली पनिश द लैंडलॉर्ड हु हरेस कॉमन पीपल. यस, और वो भी क्या करते थे, देखो जो छत्रपति संभाजी महाराज थे, जैसे उनके डैडी के लिए हर एक ह्यूमन बींग उनके किंगडम से जो बिलोंग करता था वो इम्पोर्टेंट था, और वो हर एक ह्यूमन बींग की केयर करते थे. तो वैसे संभाजी महाराज क्या करते थे, देखो, ही सेवरली पनिश, वो क्या करते थे, मतलब पनिश करते थे किसको? जो लैंड होते थे, जो कॉमन पीपल उनसे लोन लेते हैं, या फिर फॉर देयर फार्मिंग दे वर टेकिंग सम मनी फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम लैंड ऑन. तो कैसे उन लोग परेशान करते ना, जो लोकल पीपल होते, जो कॉमन पीपल होते, तो उन लोगों को वो पनिश करते थे. कौन? संभाजी महाराज. ही गेव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू महारानी येसुबाई. अब उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ये किसके हाथ में दिया था? महारानी येसुबाई की येसुबाई के हाथ में दिया हुआ था. किसने? संभाजी महाराज ने. ही गेव हर ओन स्टैम्प. ही कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ शिवाजी महाराज वेलफेयर पॉलिसीज. यस, अब उन्होंने सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको उन्होंने किसके हैंड ओवर कर दिया था? जो येसुबाई थी उनके हैंड ओवर कर दिया था. इवन उनका खुद का स्टैम्प भी था,
जो लगाते हैं ना स्टैम्प, वो स्टैम्प भी उनका था। एंड जो लेगेसी थी शिवाजी महाराज की, वो उन्होंने जो भी मतलब जो भी वेलफेयर पॉलिसीज थी शिवाजी महाराज की, वो उन्होंने कंटिन्यू रखे थे, येसुबाई ने भी और संभाजी महाराज ने भी। संभाजी महाराज न्यू Shivaji Maharaj knew Sanskrit and many other languages well. Yes, जैसे शिवाजी महाराज को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, तो वैसे शिवाजी महाराज को संस्कृत और ऐसी बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस आती थी. He studied many ancient books on polity and wrote their gifts in a book called बदभूषणम. यस, अब उन्होंने बहुत सारी जो एंशियंट बुक थी उसमें उसके बारे में स्टडी की थी, एंशियंट बुक की स्टडी की थी पॉलिटी के ऊपर, और उन्होंने क्या राइट किया था, ही रोट गिट्स इन अ बुक एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज बुद्धभूषणम. उन्होंने बुक राइट की थी जिसका नेम था बुद्धभूषणम. ओके, ना डू यू नो संभाजी महाराज कंपोज बुद्धभूषणम इन अ संस्कृत लैंग्वेज. अब देखो ये जो बुक उन्होंने राइट करे थे बुद्धभूषणम, तो ये कौन से लैंग्वेज में राइट किए थे, संस्कृत लैंग्वेज में राइट किए थे, राइट. द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक डिस्कसेस पॉलिटी. जो सेकंड चैप्टर था ये बुक का, तो उसमें क्या डिस्कस किया गया था, पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया गया था. इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्च्यू ऑफ अ किंग. अब उसमें क्या क्या इंक्लूड था, देखो इंफॉर्मेशन इंक्लूड थी किसके बारे में, अबाउट द वर्च्यू ऑफ अ किंग, किंग के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, प्रिंसेस के बारे में, उनके एजुकेशन फंक्शंस, और जो एडवाइजर्स थे किंग के, और फोर्ट्स के गुड्स मटेरियल, ये सब के बारे में उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी ये बुक के अंदर बदभूषणम. ओके, नाउ डेथ ऑफ संभाजी महाराज.